welcome back to EP classes for 11th, 12th, NEET UG, MBBS, and NEET PG. Before we start, if you happen to find my content helpful, then do consider subscribing. That will really help the channel and motivate us to provide more content. Thank you. So, we were discussing Kingdom Monera, and another very important group of prokaryotic organisms in Kingdom Monera is of cyanobacteria. They are also called blue-green algae. Now in cyanobacteria और blue green algae को डिस्कस करने से पहले I would like to draw your attention to this word algae. यहाँ हमने algae word यूज़ किया cyanobacteria के लिए जो एक prokaryote है and therefore a member of kingdom Monera. अगली kingdom हमें study करनी है Protista जो unicellular eukaryotic organisms की kingdom है और वहाँ भी algae है Protistan algae which include dinoflagellates, diatoms and euglenoids. और उसके बाद जब हम plant kingdom देखते हैं वहाँ भी algae हैं like green algae, brown algae, red algae. From this we conclude that algae is not a particular group of organisms in modern five kingdom classification but a general term, a term used for aquatic photosynthetic organisms. और जो एल्जी हैं उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स तो होंगे ही जो कई टाइप्स के होते हैं बट एल्जी में क्लोरोफिल ए पिगमेंट होना ज़रूरी है मतलब जो एल्जी है उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए होगा जो भी एल्जी है बाकी बातें एल्जी के रिलेटेड हमें विद टाइम क्लियर होती जाएंगी नाउ कमिंग बैक टू साइनोबैक्टीरिया So cyanobacteria are gram-negative photosynthetic prokaryotes which perform oxygenic photosynthesis. Oxygenic photosynthesis. This is very important. मतलब during their photosynthesis, oxygen gas is released. और ये oxygen gas इसलिए release होती है क्योंकि they were the first organisms to use water as the source of hydrogen. They used water as the source of hydrogen for the reduction of carbon dioxide to make sugar and in the process release oxygen और फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया में अगर आपको याद हो हमने देखा था इस हाइड्रोजन का सोर्स वाटर नहीं होता कुछ दूसरे कंपाउंड्स होते थे जिसकी वजह से ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होती और जिसको हमने एनऑक्सीजनिक photosynthesis कहा था तब. Now cyanobacteria evolved some 3 billion years ago और उस टाइम पे अर्थ का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था. साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के थ्रू अर्थ का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग बनाना स्टार्ट किया बाय एडिंग ऑक्सीजन इनटू इट और वहीं से एरोबिक ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन भी स्टार्ट हुआ. एरोबिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है. तो साइनोबैक्टीरिया का वजूद में आना एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था एवोल्यूशन के लिए. Now photosynthetic pigments in cyanobacteria. Cyanobacteria में मेन photosynthetic pigments हैं chlorophyll A and carotenoids. And remember this, they have accessory photosynthetic pigments called phycobilins. And these phycobilins are of three types: phycocyanin, which is blue in color, allophycocyanin, which again is blue in color, and phycoerythrin, which is red in color. And now let's talk of the morphology or body form in cyanobacteria. Cyanobacteria may be unicellular, for example, Synechococcus. Cyanobacteria may be colonial, जहाँ कई cyanobacterial cells एक colony बनाती है covered by a mucilaginous sheath. ये mucilage. Example के लिए जैसे यहाँ पे Gliocapsa. Cyanobacteria में एक और body form है filamentous.
filamentous form में cyanobacterial cells are placed one over the other in a single pile. जैसे आप यहाँ देख रहे हो, cells are placed one over the other in a single pile. इस single pile of cells को trichome कहते हैं, trichome. और इस trichome के अराउंड एक mucilage sheath होगा, mucilage sheath. और trichome and this mucilage sheath together make a filament. Okay. अब ये जो cells है trichome में, इनके walls में यहाँ 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 pores होते हैं, which act as cytoplasmic bridges, and you also call them microplasmodesmata. Microplasmodesmata. They act as cytoplasmic bridges. ये आप याद रखोगे, कुछ देर में इस पे और बात होगी. ओके. अब कुछ साइनोबैक्टीरिया के फिलामेंट्स में ब्रांचिंग नहीं होती, जैसे ऑसिलेटोरिया. कुछ के फिलामेंट्स में ब्रांचिंग होती है, जैसे फिशरेला. या ब्रांचिंग देख रहे हो यार. फिलामेंट्स स्पाइरल होते हैं स्पाइरुलिना में. नॉस्टॉक में कई फिलामेंट्स की कॉलोनी बनती है जो एक कॉमन म्यूसिलेज शीथ में होती है. नाउ फिलामेंट्स कैन बी होमोसिस्टस और हेट्रोसिस्टस. होमोसिस्टस मतलब फिलामेंट की सारी सेल्स एक जैसी होंगी, जैसे आप यहाँ ऑसिलेटोरिया में देख सकते हो, फिलामेंट की सारी सेल्स एक जैसी हैं. और हेट्रोसिस्टस मतलब फिलामेंट में सारी सेल्स एक जैसी नहीं होंगी, एक आध सेल्स डिफरेंट भी होंगी, जिन्हें हेट्रोसिस्ट्स कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए यहाँ नॉस्टॉक का एक फिलामेंट अगर हम देखें तो ये यहाँ पे हेट्रोसिस्ट, ये हेट्रोसिस्ट, मतलब सारी सेल्स एक जैसी नहीं है फिलामेंट की, एक आध सेल्स डिफरेंट होती है, एंड दिस डिफरेंट सेल्स आर कॉल्ड हेट्रोसिस्ट्स. और इन्हीं हेट्रोसिस्ट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी, which we will see in a while. तो हमने देखी फॉर्म्स साइनोबैक्टीरिया की, जिसमें हमने कहा they can be unicellular, they can be colonial, or they can be filamentous. Okay. Now, cilia and flagella, they are absent in cyanobacteria. Cyanobacteria में cilia and flagella नहीं होते, but gliding movements are known in some. Reserve food. Cyanobacteria में एक special type of starch called cyanophycean starch है, जबकि बैक्टीरिया में कार्बोहाइड्रेट रिजर्व फूड ग्लाइकोजन होता है. लेकिन यहाँ साइनोबैक्टीरिया में कार्बोहाइड्रेट रिजर्व फूड साइनोफाइसियन स्टार्च है. और यहाँ रिजर्व फूड में कुछ लिपिड ग्लोब्यूल्स भी हैं साइनोबैक्टीरिया में. ओके, नाउ लेट्स टॉक ऑफ साइनोबैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर. साइनोबैक्टीरियल सेल बैक्टीरियल सेल से बड़ी होती है, एंड लाइक वी सॉ अर्लियर, इन सेल्स के अराउंड म्यूसिलेज शीथ होगा. और इस म्यूसिलेज शीथ के होने की वजह से ही साइनोबैक्टीरिया और ऑल्सो कॉल्ड स्लाइम एल्जी, स्लाइम एल्जी और मिक्सोफाइसी. अब सेल वॉल जस्ट लाइक बैक्टीरियल सेल बना होता है ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, एंड सेल वॉल इन साइनोबैक्टीरिया इज 3 to 4 layered. एंड लाइक वी सेड अर्लियर, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उनके सेल वॉल में पोर्स होंगे टू मेक साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस. नाउ आउटर पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल वॉल को छोड़ के सेल का बाकी सब कुछ, सेल वॉल को एक्सक्लूड करके. तो प्रोटोप्लास्ट के आउटर पार्ट में आप देखोगे, ये आउटर पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लास्ट,
इस आउटर पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लास्ट में आप देखोगे थाइलाकॉइड्स, ये थाइलाकॉइड्स थाइलाकॉइड्स आर नथिंग बट मेम्ब्रेन सैक्स, और इन्हीं थाइलाकॉइड्स के मेम्ब्रेन के इनसाइड होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और यहाँ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड्स इनसाइड द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और इस थाइलाकॉइड की आउटर सरफेस पे होते हैं ये ग्रेन्यूल्स, these granules called phycobilisomes. These granules are called phycobilisomes. इन phycobilisomes में होते हैं accessory photosynthetic pigments of cyanobacteria, जिन्हें हमने कहा था phycobilins, और जिसकी हमने कुछ देर पहले 3 टाइप्स देखे, phycocyanin, allophycocyanin एंड phycoerythrin। अब ये पिगमेंट्स जो एसोसिएटेड हैं विद थाइलाकॉइड्स, एंड थाइलाकॉइड्स वी सेड प्रोटोप्लास्ट के आउटर पार्ट में होते हैं, इन पिगमेंट्स की वजह से दिस आउटर प्रोटोप्लास्ट बिकम्स कलर्ड एंड वी कॉल इट क्रोमोप्लाज्म, we call it chromoplasm. This outer part of the protoplast, and the remaining colorless part of protoplasm is called centroplasm. Remember this, यहाँ से काफ़ी questions frame किए जाते हैं. Okay, and cyanobacteria being prokaryotic, कोई membrane bound organelles नहीं है. Ribosomes 70S हैं. Ribosomes are 70S. DNA naked है. Again, naked DNA मतलब not associated with any histone proteins. And this naked DNA is circular, coiled and compact and is called nucleoid. जैसे हमने बैक्टीरिया में देखा था, और बैक्टीरिया की तरह ही साइनोबैक्टीरिया में भी कुछ एक्सेसरी डीएनए सेगमेंट्स कॉल्ड प्लाज्मिड्स भी हो सकते हैं. Plasma membrane becomes folded at places, and these folds of plasma membrane are called lamellosome. और अगर आपको याद हो, बैक्टीरिया में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड को हमने कहा था मीसोसोम. Cyanobacteria में we call this membranous fold lamellosome. Okay. And here in cyanobacteria, instead of sap vacuoles, we see gas vacuoles. These gas vacuoles help in regulating buoyancy. They regulate buoyancy. They refract harmful radiations, and they store metabolic gases. और सेल इंक्लूजन्स में हम देखते हैं रिजर्व फूड, एंड विच वी अर्लियर सेड इंक्लूड्स साइनोफाइसियन स्टार्च एंड सम lipid globules. And now let's talk of nitrogen fixation in cyanobacteria. A number of cyanobacteria can perform nitrogen fixation. Nitrogen fixation में these cyanobacteria will convert atmospheric nitrogen into usable forms, or you say compounds, like ammonia, with the help of an enzyme called nitrogenase. इस nitrogenase की proper functioning के लिए oxygen absent होना चाहिए. Remember this, nitrogenase enzyme does not function in presence of oxygen. But we know cyanobacterial cells तो oxygenic photosynthesis करती हैं and release oxygen in the process. मतलब cyanobacterial cells में oxygen होगा, तो इसीलिए cyanobacteria में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कुछ अडेप्टेशंस हम देखते हैं. अडेप्टेशंस जैसे कुछ फिलामेंटस
नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया में स्पेशल सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट्स होती हैं। जैसे हमने हेट्रोसिस्ट्स देखे थे नोस्टॉक के फिलामेंट्स में। ये हेट्रोसिस्ट्स म्यूसिलेज फ्री होती हैं। इनका सेल वॉल इम्परमेबल होता है टू ऑक्सीजन, मतलब दे डू नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस दम। इन हेट्रोसिस्ट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। फोटोसिंथेसिस नहीं होती मतलब ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगा, और यही ऑक्सीजन फ्री कंडीशंस चाहिए नाइट्रोजनेज एंजाइम को। ओके, और इसीलिए हेट्रोसिस्ट में PS2 फोटोसिस्टम 2 नहीं होता। हाँ, PS1 होता है फॉर ATP सिंथेसिस। हेट्रोसिस्ट्स में PS2 फोटोसिस्टम 2 नहीं होता, लेकिन फोटोसिस्टम 1 होता है फॉर ATP सिंथेसिस। ये PS2 PS1 इन डिटेल हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स में। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ रखा है और आइडिया है थोड़ा सा इन फोटो सिस्टम्स का, उनके लिए आई ब्रीफली गो ओवर इट कि क्यों हेट्रोसिस्ट्स में PS2 नहीं है बट PS1 है। ओके, जब फोटो सिस्टम 2 और इसे PS2 पे लाइट पड़ती है, तब इसी PS2 का रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, और ये रिएक्शन सेंटर फिर इलेक्ट्रॉन लेता है वाटर से। वाटर एक्चुअली ब्रेक्स इनटू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन, जिसे हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। ओके, फिर इस इलेक्ट्रॉन का नॉन साइक्लिक फ्लो होता है, नॉन साइक्लिक फ्लो फ्रॉम वन कैरियर to another of this electron transport chain. इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टाइम इलेक्ट्रॉन लूजेस सम एनर्जी, और इसी एनर्जी से ATPs बनेंगे, and this electron eventually is accepted by NADP plus to make NADPH. ये NADPH ही कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाएंगे डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में। ओके, अब अगर हमने कहा हेट्रोसिस्ट्स में PS2 है ही नहीं, तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी और फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। ओके, बट वी सेड हेट्रोसिस्ट्स में फोटोसिस्टम 1 और PS1 है। इस PS1 पे जब लाइट पड़ती है तो PS1 के रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक फ्लो होता है। साइक्लिक फ्लो इस इलेक्ट्रॉन का, PS1 के रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक फ्लो, इलेक्ट्रॉन वाटर से नहीं लिया जाएगा तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी, और इस साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में ATPs बनेंगे, NADPH नहीं बनेगा, खाली ATPs बनेंगे। और ये ATPs मेरे भाई किसे नहीं चाहिए। ओके, तो हमने कहा कि कुछ साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक एडाप्टेशन ये है कि ऑक्सीजन फ्री स्पेशल सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट्स हैं, और इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती हेट्रोसिस्ट्स में। अब अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होती इनमें, तो नरिशमेंट के लिए दीज हेट्रोसिस्ट्स हेल्प लेती हैं नेबरिंग नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स की, नेबरिंग नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स की, क्योंकि हमने पहले भी कहा था दैट फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया की सेल्स के सेल वॉल में पोर्स होते हैं विच मेक साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। ओके, एक और एडाप्टेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए साइनोबैक्टीरिया में ये है कि दे परफॉर्म फैकल्टेटिव एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। फैकल्टेटिव एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में
ये साइनोबैक्टीरिया वाटर यूज़ नहीं करते as hydrogen donor and therefore will not liberate oxygen while performing this nitrogen fixation. और एग्जाम्पल के लिए Oscillatoria limnetica. Now कुछ uses, कुछ positive aspects देखते हैं हम साइनोबैक्टीरिया के. तो साइनोबैक्टीरिया help in ecological succession. Being autotrophic and having the ability of fixing atmospheric nitrogen, most cyanobacteria are self sufficient, and because of which they are the early colonizers of barren areas. इन जगहों पे सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया उगेंगे जहाँ कुछ भी नहीं होता, like rocks, water bodies, etc. And in time, they start providing suitable conditions for the growth of other species of organisms. And in time, एक full-fledged ecosystem वजूद में आ जाता है. और इसी phenomenon of going from barren to a full-fledged ecosystem को हम ecological succession कहते हैं. So cyanobacteria help in ecological succession. Cyanobacteria as food and fodder. Spirulina अफ्रीका में ह्यूमंस यूज़ करते हैं एज फूड. चाइना में लोग नॉस्टॉक खाते हैं. एनाबीना एंड स्पाइरुलिना को एज एनिमल फीड भी यूज़ करते हैं. कई दूसरी जगहों में भी स्पाइरुलिना को ड्राई करते हैं, ग्राइंड करके पाउडर्ड फॉर्म बनाते हैं इसकी, और फिर टेबलेट्स की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं एज प्रोटीन रिच सप्लीमेंट्स. और इन टेबलेट्स को SCP और सिंगल सेल प्रोटीन्स भी कहते हैं. Okay. Now cyanobacteria as nitrogen fertilizers. Now as we saw, several cyanobacteria perform nitrogen fixation. They therefore enhance the fertility of the place where they exist. Now disadvantages और नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया में हम मेनली याद रखेंगे कि जिन वाटर बॉडीज़ में सूएज और इंडस्ट्रियल वेस्ट जाते रहते हैं वहाँ साइनोबैक्टीरिया का नंबर भी इंक्रीज़ होता जाता है. एंड दीज साइनोबैक्टीरिया फॉर्म स्मेली ब्लूम्स. एंड व्हेन दीज साइनोबैक्टीरिया डाई they become food of aerobic bacteria. ये एरोबिक बैक्टीरिया इस पानी का ऑक्सीजन कंज्यूम करते जाते हैं. एंड इवेंचुअली फिश एंड अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स सफोकेट एंड डाई. एंड नाउ let's take a few MCQs related to cyanobacteria. You try them yourself and write your answers or doubts in the comment section. And I'll get back to you as soon as possible. Question 1. Specialized cells called heterocysts occur in Archaeobacteria, Cyanobacteria, Chrysophytes, Euglenoids, Dinoflagellates. Oxygenic photosynthesis is found in Oscillatoria, Chlorobium, Rhodospirillum, Chromatium. Which among the following is not a prokaryote? Saccharomyces, Mycobacterium, Nostoc, Oscillatoria. Pigments phycocyanin and phycoerythrin occur in Bacillariophyceae, Archaeobacteria, Eubacteria, Cyanobacteria, Chlorophyceae. Blue-green algae are actinomycetes, eukaryotes, prokaryotes, acellular. Cyanobacteria are autotrophs, heterotrophs, saprotrophs, parasites. Which do not give out oxygen? Green algae, blue-green algae, green plants, photosynthetic bacteria. Cyanobacteria is the modern name of Myxomycetes, Myxophyceae, Schizomycetes, Mycoplasma.
Oxygen is not produced during photosynthesis by Cycas, Nostoc, green sulfur bacteria, Chara. Which of the following are nitrogen fixing algae? Nostoc, Oscillatoria anabina. Option B. Oscillatoria azola anabina. Option C. Azola anabina azotobacter. Option D. Oscillatoria azola nostoc. Thank you for visiting my channel. If you find my content helpful, consider subscribing, and you can catch me in my next video easily. Thank you again. Have a good life.